تو یہ سزا کب لاگو ہوگی، کب دی جائے گی؟ گواہوں کو، جو گواہ ہوتے ہیں وہ ان کی شہادت وہ دیں گے، یا پھر جو ملزم ہوگا یا ملزمہ ہوگی، زانی اور زانیہ، وہ خود اقرار کریں گے، یا پھر گواہی دینے والے وہ کہیں کہ ہم نے عین حالت مباشرت میں ان کو دیکھا ہے، اس طرح جیسے سرما دانی میں سلائی یا کنویں میں رسی، اس حد تک وہ کہیں گے تو پھر جو ہے یہ سزا ہوگی۔ قاضی یا جج یا حاکم وقت جس کو اس کے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، وہ ان کے سامنے جا کر اگر زانی نے زانیہ نے دونوں نے اقرار کر لیا کہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، تو اب وہ ان کو سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ کی جو حد ہے اس کو جاری کریں گے۔ اگر کنوارا لڑکا اور لڑکی اس گناہ کے مرتکب ہوئے ہوں گے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ مرد و عورت جنہوں نے خلوت صحیحہ بھی اختیار کی ہو، عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، آزاد ہوں، یہ تمام شرائط میں سے کوئی ایک بھی شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ سزا کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ تمام شرائط جو پیچھے بیان کی جا چکی ہیں وہ پائی جائیں گی تو ان کو سزا دی جائے گی۔ اور جب وہ اقرار کریں گے تو پھر یعنی کہ اگر وہ اقرار نہیں کرتے، فرض کریں خود جا کے ملزم اور ملزمہ، تو پھر جج اور حاکم وقت پر جب یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ 4 گواہان مرد طلب کرے گا اور چاروں کو الگ الگ بلائے گا اور سب کے بیانات سنے گا کہ تو نے یہ زانی اور زانیہ کو، زنا کرنے والوں کو، آپس میں مباشرت کرنے والوں کو کس ٹائم پہ دیکھا، کس جگہ پر دیکھا، کس حال میں دیکھا۔ اگر وہ چاروں کے بیان ملتے ہوں گے آپس میں، بیان جو یعنی کہ ایک نے دیا، دوسرے نے بھی وہی دیا، تیسرے نے، چوتھے نے بھی وہی دیا جو جج نے سوال کیے تھے، اب یہ جرا جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ جب جرا مکمل ہو جائے گی تو اب سزا دی جائے گی۔ اس لیے ہمیں جو ایک اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ سچی توبہ کریں اور یہ اقرار نہ کریں بالکل بھی، اور عام عوام کا بھی نہیں بنتا کہ وہ یعنی کہ جا کر بتائیں جج کو یا قاضی کو یا حاکم وقت کو تاکہ ان کو سزا دی جائے۔ اس طرح سے جو ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ ملتا ہے، سب سے بڑا جو مقدمہ آیا تھا جو اس قانون کا ماخوذ ہے، تو وہ کیا تھا کہ حضرت معاذ بن مالک اسلمہ کا ہے، جسے متعدد صحابہ کرام نے کثرت کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں حدیث مبارکہ یا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، یہ تمام کتب احادیث میں موجود ہے۔ یہ جو تھے معاذ بن مالک اسلمہ، یہ قبیلہ اسلم کا ایک یتیم لڑکا تھا جس نے حضرت حزال بن نعیم کے ہاں پرورش پائی تھی۔ یہاں وہ ایک آزاد کردہ لونڈی سے زنا کر بیٹھا تو حضرت حزال نے کہا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس گناہ کی خبر دے، شاید کہ آپ تیرے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ تو اب کیا کیا کہ اس نے جا کر مسجد نبوی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے پاک کر دیں، میں نے زنا کی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی اس کی یہ بات سنی اور کیا کیا، منہ پھیر لیا اور فرمایا ارے تو چلا جا اور اللہ سے توبہ و استغفار کر۔ مگر جو معاذ بن مالک اسلمہ تھے انہوں نے پھر سامنے سے آ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پھر یہی سیم بات دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر منہ پھیر لیا۔ انہوں نے پھر تیسری بار یہی بات دہرائی تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس مسجد نبوی میں موجود تھے، تو آپ نے اس کو متنبہ کیا، فرمایا کہ اب چوتھی بار اگر تو نے یہ اقرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے رجم کر دیں گے۔ اب وہ نہیں مانا، دیکھیے کس قدر خوف تھا، تو وہ نہیں مانا اور اپنی بات پھر دہرائی۔ اب دیکھیے
करीम आका अलैहिस्सलाम का मुकालमा देखिए रहमत लिल आलमीन। आप फरमाते हैं कि अब हजूर इसकी तरफ मुतवज्जे हुए और उससे फरमाया, शायद तूने बोसो की नार किया होगा, यानी कि एक होता ना चूमना, बोसा करना, चूमना, बोसो की नार किया होगा, या वैसे ही छेड़छाड़ की होगी, या नजर बद डाली होगी, और तू समझ बैठा है कि ये जिना है, तूने जिना का इर्तिकाब कर लिया है। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं नहीं। आपने पूछा, क्या तू उससे हम बिस्तर हुआ? उसने कहा हाँ। फिर आप ने पूछा, क्या तूने उससे मुबाशरत की? उस लड़के ने कहा जी हाँ। फिर पूछा, क्या तूने उससे मुजामत की? तो फिर उसने कहा, वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो अरबी ज़ुबान में सरीहन फ़ेल मुबाशरत के लिए बोले जाते हैं। उसने फिर सही पूरा खुल के बताया कि किस तरीके से मैंने इस काम को सर अंजाम दिया है। तो फरमाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ने पहले कभी नहीं सुना था। तो आपने फिर सुना और बताया कि अब इस शख्स की जान का मामला ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपनी ज़बान से ये लफ्ज़ ना निकालते। आपने फरमाया कि क्या इस हद तक कि तेरी वो चीज़ उस चीज़ में गायब हो गई? उसने कहा कि इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह से गायब होगी जैसे सुरमा दानी में सलाई और कुएं में रस्सी। तो उसने कहा यानी कि जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तू जानता है कि जिना किसे कहते हैं? आप देखो आका करीम अलैहिस्सलाम किस कदर तफ्तीश कर रहे हैं, किस कदर बारीकी से उससे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। क्या तू जानता है कि जिना किसे कहते हैं? उसने कहा जी हाँ। मैंने उसके साथ हराम तरीके से वो काम किया जो शोहर हलाल तरीके से अपनी बीवी के साथ करता है। तो आपने पूछा, क्या तेरी शादी हो चुकी है? उसने कहा जी हाँ। आपने पूछा, तूने शराब तो नहीं पी ली? तो उसने कहा नहीं। एक शख्स ने उठकर उसका मुंह सूंघा और तस्दीक की। फिर आपने उसके मोहल्ले वालों से दरियाफ्त किया कि ये दीवाना तो नहीं है? उन्होंने कहा, हमने इसकी अकल में कोई खराबी नहीं देखी। आपने हज़ाल से फरमाया कि काश तुमने इसका पर्दा ढांक दिया होता। सारी तफ्तीश करने के बाद आका करीम अलैहिस्सलाम ने मोहल्ले वालों से पूछा, उसका खुद एक भाड़कर किसी सहाबी ने मुंह सूंघा कि शराब तो नहीं पी हुई, पागल तो नहीं है, मजनून तो नहीं है, जिना का मतलब माना मफहूम जानता है, शादीशुदा है कि नहीं है, मुबाशरत की या मुजामत की, किस तरीके से की, कैसे की, सारी बात बहुत बारीकी के साथ। और यही हुक्म है काजी जज के लिए या हाकिम वक़्त के लिए, उनके लिए ये हुक्म है, आम शहरी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। किसी शक की बना पर आजकल देखो औरतों को जिंदा आग जला के यानी कि आग लगा के जला दिया जाता है, नाक काट दिए जाते हैं, हाथ पांव काट दिए जाते हैं, तशद्दुद किया जाता है, शोहर मार मार के, एक नंद ने कोई बात कह दी, सास ने कोई बात कह दी, यानी कि ऐसे कोई इल्जाम लगा दिया, कोई बुहतान लगा दिया, कुछ भी कह दिया, शोहर सुबह से गया थका हुआ घर में आया, आके बिना सोचे बिना समझे सोचे ये फलां के पास गई थी, फलां के पास खड़ी थी, फलां के पास आता है, क्यों बैठता है, क्यों जाता, यानी कि इस तरीके से, यानी कि वो घर का माहौल किस कदर खराब। फिर ये टीवी चैनल्स पे किस तरीके से जनाब खबरें उछाली जाती हैं, बताइए, जिना के माहौल को गरमाया जाता है, ये बात जहनों में डाली जाती है कि जिना होता क्या है, कहते किसे हैं, ये क्या है। इस कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है इस तरीके से। बज़ाहिर तो कहते हैं हम सच बोलते हैं, हम सच बोलने वाले हैं, ये है। एक आम जो है उसको तो लटका दिया जाता है, लेकिन एक जो खास होता है, किसी हाकिम वक़्त का बेटा है, किसी वजीर का, मशीर का, उसको छोड़ दिया जाता है। इतनी बारीकी से पूछा। फिर फरमाते हैं कि काश हज़ाल ने इस पर पर्दा ढांक दिया होता तो तुम्हारे लिए अच्छा था। फिर आपने मास को रजम करने का फैसला सादिर फरमाया और उसे शहर के बाहर ले जाकर संसार कर दिया। जब पत्थर पड़ने शुरू हुए तो मास भागा और उसने कहा, लोगों मुझे रसूलुल्लाह के पास ले चलो, मेरे कबीले के लोगों ने मुझे मरा दिया, अब उन्होंने मुझे धोखा दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कत्ल नहीं कराएंगे, मुझे उनके पास ले जाओ। अब बेचारे को जब पत्थर पड़ रहे हैं, संसार किया जा रहा है, शादीशुदा जब ये अमल करेगा तो संसार किया जाएगा। संसार जब किया जा रहा था तो अब क्या है कि वो कहता मुझे रसूलुल्लाह के पास ले जाओ, मुझे मेरे लोगों ने मरवा दिया, क्योंकि हज़ाल की बेटी के साथ किया था, हज़ाल ने कहा चले जाओ, तो उन्होंने मिलकर मुझे मरवा दिया है, मगर मारने वालों ने उसे मार डाला। बाद में जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इतला दी गई तो आपने फरमाया, तुम लोगों ने उसे छोड़ क्यों नहीं दिया, मेरे पास ले आते, शायद वो तौबा करता और अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा लेता। ये था रजम करने वालों के लिए।
आप देखिए जो कोड़े मारने का अल्लाह पर जो हुक्म दिया कि अज़ानियत वज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मा जल्दतिन, के जानिया को जानी को कोड़े मारो। अब यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिल्द का, फजलिदू, तो ये जिल्द का लफ्ज किससे होता है, यानी जो जिस्म की खाल होती है, ऊपरी जो जिल्द होती है, इससे निकला गया है जिल्द से जिल्दा। तो फजली दू बस तुम मारो जिल्द पर। तो अब इस बात के जो जितने भी अहले लुगत हैं, तमाम उलमाए तफसीर हैं, सब ने इसके जो माने लिए हैं वो ये लिए हैं कि ऐसी मार नहीं होनी चाहिए जिसका असर जिल्द तक रहे, गोश्त में ना पहुंचे। ऐसी मार मारो कि सिर्फ ऊपर ऊपर जिल्द पर रहे। कोड़े किस तरह कहते, 100 कोड़े मारे जाएं तो कैसे मारे जाएं? ऐसे कोड़े जिससे गोश्त के टुकड़े टुकड़े उड़ जाएं या खाल फट कर अंदर तक जख्म पड़ जाएं, ये कुरान के हुक्म के खिलाफ है। मारने के लिए बताया जा रहा है कि ख्वाह कोड़ा इस्तेमाल किया जाए या बैद, दोनों सूरतों में वो औसत दर्जे का होना चाहिए, ना बहुत मोटा ना सख्त ना बहुत पतला ना नरम। मोता में इब्ने मालिक की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रबे ताज़ियाना के लिए, यानी कि कोड़े मारने के लिए तलब किया, और वो कसरत इस्तेमाल से बहुत कमज़ोर हो चुका था। आपने फरमाया कि इससे ज़्यादा सख्त लाओ। फिर एक नया कोड़ा लाया गया जो भी इस्तेमाल से नरम नहीं पड़ा था। आपने फरमाया दोनों के दरमियान ऐसा यानी कि दोनों के दरमियान का कोड़ा लाओ, ना तो बिल्कुल ही न्यू हो कि अभी इस्तेमाल ही ना हुआ हो, ना ऐसा पुराना हो कि इस्तेमाल हो कि बहुत ही नरम हो चुका हो, दरमियाना लेकर आओ। फिर ऐसा कोड़ा लाया गया जो सवारी में इस्तेमाल हो चुका था, उससे आपने ज़रबें लगवाई। इसी से मिलती जुलती रिवायत हज़रत अबू उस्मान अन-नहदी ने हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक बयान की है कि वो औसत दर्जे के कोड़े इस्तेमाल करते थे। इस तरह से फरमाया कि मार भी औसत दर्जे की होनी चाहिए। हज़रत उमर मारने वाले को हिदायत करते थे कि इस तरह मार कि तेरी बगल ना खुले। अब यहाँ कैसे मारा जाता है? एक आम मुल्ज़म को भी दोनों हाथों के जोर से खड़े होकर पूरा सीना तान के किसी के बाजू उठा उठा के पूरे जोर से मारा जाता है। यहाँ पर एक जानी के लिए कहा जा रहा है कि तेरी बगल खुली हुई, तेरे बाजू जो बगल तेरी साथ मिली हुई हो, यानी कि बगल में ऐसे मिली हुई होगी, पेट के साथ कोह नहीं लग रही होगी, अब हल्के हल्के हाथ से उठा उठा के मारा जाएगा। तो फरमाया जा रहा है कि ऐसे मार कि तेरी बगल ना खुले, यानी पूरी ताकत से हाथ को तान कर ना मार। इस तरीके से तमाम फुकहा इस पर मुत्तफिक हैं कि ज़रब जो है, जो मार है, वो मुबर्रा नहीं होनी चाहिए, यानी जख्म डाल देने वाली नहीं होनी चाहिए। एक ही जगह नहीं मारना चाहिए, तमाम जिस्म पर मार को फैला देना चाहिए। सिर्फ मुंह और शर्मगाह और यानी कि पर नहीं मारना चाहिए। ना चेहरे पे मारो, ना शर्मगाह पर मारो, ना एक ही जगह पर मारो। सजा को जिस्मों पे फैला दो। और ये भी कहा जाता है कि 10-10 करके भी कोड़े, आज 10 लगाए हैं, 10 नेक्स्ट डे लगा दिए जाएं, नेक्स्ट डे लगा दिए जाएं, नेक्स्ट 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 भी लगा दिए जा सकते हैं, या पूरे दिन में भी वक्फे वक्फे से लगाए जा सकते हैं। ये नहीं कि एक ही जगह पे मारना शुरू कर दो और वो बहुत शदीद और सख्त मार मारो, ऐसा नहीं है। फरमाया जा रहा है कि जब तुम में से कोई मारे तो मुंह पर ना मारे, मर्द को खड़ा करके मारना चाहिए और औरत को बिठाकर। इमाम अबू हनीफा के ज़माने में कूफे के काजी इब्ने अबी लैला ने एक औरत को खड़ा करके पिटवाया। इस पर इमाम अबू हनीफा ने सख्त गिरफ्त की और एलानिया उनके फैसले को गलत ठहराया, और इससे कानून तौहीन अदालत के मामले में भी इमाम साहब के मसलक पर रोशनी डाली कि ज़रबे ताज़ियाने के वक़्त औरत अपने पूरे कपड़े पहने रहेगी, बल्कि इसके कपड़े अच्छी तरह बांध दिए जाएंगे ताकि उसके जिस्म खुल ना जाए, सिर्फ मोटे कपड़े से उतरवा दिए जाएंगे। मर्द के मामले में इख्तलाफ है, बाद फुकाहा कहते हैं कि वो सिर्फ पजामा पहने रहेगा, और बाज़ कहते हैं कमीज भी नहीं उतरवाई जाएगी। सख्त सर्दी और सख्त गर्मी के वक़्त मारना ममनू है, यानी कि सर्दी में गर्म वक़्त और गर्मी में ठंडे वक़्त पर मारने का हुक्म है। ऐसे ही बांध कर मारने की भी इजाज़त नहीं है, इल्ला ये कि मुजरम भागने वाला हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, उस उम्मत में नंगा, यानी कि उसे उम्मत में नंगा करके और टिकटिकी पर बांध कर मारना हलाल नहीं है। फिर फरमाया फुकहा ने इसकी को जायज़ रखा है कि रोज़ाना कम अज़ कम 20-20 कोड़े मारे जाएं, लेकिन ऊला यही है कि ब्याक वक़्त पूरी सज़ा दे दी जाए। फिर फरमाया कि मार का हुक्म जो उज्जड़ जल्लाद होते हैं उनको नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको देना चाहिए जो साहिबे इल्म बसीरत हों,
ٹھیک ہے، جو سارے معاملے کو سمجھتے ہوں، زنا کے احکامات کو، اس کی سزا کو، ان کی حدود کو ان کو علم ہو، ان کو پتہ ہو، سمجھتے ہوں، تو یہ سزا، یہ کام ان کے سپرد کرنا چاہیے جو صاحب علم و بصیرت ہوں، جو جانتے ہوں کہ شریعت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے کس طرح مارنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت علی، حضرت زبیر، مقداد بن عمرو، محمد بن مسلمہ، عاصم بن ثابت اور دحاق بن سفیان جیسے صلحائے متعززین نے جلادی کی خدمت لی گئی ہے۔ یہ تمام صحابہ جلادی کا کام کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے اگر مجرم مریض ہو تو اس کی صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو، یا بہت بوڑھا ہو تو 100 شاخوں والی، 100 شاخیں ہوتی ہیں نا، 100 شاخوں والی ایک ٹہنی یا 100 تیلیوں والے ایک جھاڑو لے کر صرف ایک دفعہ مار دینا چاہیے تاکہ قانون کا تقاضا پورا کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھا مریض زنا کے جرم میں پکڑا گیا تھا اور آپ نے اس کے لیے یہی سزا تجویز فرمائی تھی۔ یہ جو سزا ہے احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں نقل کی گئی ہے۔ حاملہ عورت کو سزائے تعزیانہ نہ دینی ہو تو وضع حمل کے بعد نفاس کا زمانہ گزر جائے، اس کو وضع حمل ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے، اس کے بعد وہ جو چھیلے کے 40 ایام ہوتے ہیں وہ دن گزر جائیں، اس کے بعد جو ہے نا اس کو سزا دی جائے۔ اور اگر رجم کرنا ہو تو پھر کیا ہوگا کہ بچے کا دودھ نہ چھوٹ جائے تب تک سزا نہیں دینی چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے پر اگر ہم نظر مارتے ہیں، یہ جو سزائیں بتائی گئی ہیں، جس طرح سے نرمی کا حکم دیا گیا ہے کہ زانی کی بات کو نہ کھولا جائے، زانی اپنے اس گناہ کا خود اقرار نہ کرے، توبہ کرے، تائب ہو جائے، یا لوگ اگر اسے دیکھ لیں تو پھر وہ عام اس کو حاکم کے پاس نہ لے کر جائیں، اگنور کریں، درگزر کریں، اور اگر وہ ظاہر ہو جائے سب کچھ بھی، جو سزا بتائی گئی ہے، سزا میں کتنی نرمی رکھی گئی ہے، کس طریقے سے مارا جائے، کیسے مارا جائے، کس موسم میں، کس حالات میں، کھڑا کر کے، بٹھا کے، کیسے لباس پہنے ہوئے ہو، یہ سارا بتایا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر مارتے ہیں تو دیکھیے کہ کیسے وحشیانہ سزا لوگ دیتے ہیں، کس طریقے سے، یعنی کہ وہ جیلوں میں الٹا لٹکا دیا جاتا ہے یا لٹا دیا جاتا ہے، پھر جو جیل کا عام معمولی سا سپریڈنٹ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے مارتا ہے، کتنے زور زور سے مارتا ہے، کس طریقے سے اس کو مارنے کے لیے مشقیں کروائی جاتی ہیں، اور اس طریقے سے وہ یعنی کہ جو اس کے پاس بیعت جسے کہا جاتا ہے یا جسے ہم کوڑا بول رہے ہیں، مارنے والا جو ہوتا ہے، تو وہ کتنا بھگو بھگو کر تیار کیا جاتا ہے، اور جسم کو وہ ایسا ایک ہی جب لگتا ہے تو ملزم کی جو چیخیں نکل جاتی ہیں اور وہ چھری کی طرح جسم کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اس کو پتلا سا کپڑا، اس کے پورے جسم کے کپڑے اتروا دیے جاتے ہیں، پتلا سا کپڑا اس کے بس ستر ڈھانپنے کے لیے باندھا جاتا ہے، جو کپڑا باندھا جاتا ہے وہ بھی ٹنکچر آیوڈین جو ہے اس کے اوپر وہ لگی ہوتی ہے، اس سے بھگو کر باندھا جاتا ہے، اور پھر جلاد جو ہوتا ہے وہ بڑا دور سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ مارتا ہے، اور جو ضرب مارتا ہے وہ ایک ہی مخصوص حصے پر، ایک ہی جگہ پر، زیادہ تر تو وہ سرین یعنی کہ جو پیٹھ ہوتی ہے وہاں پر مار رہا ہوتا ہے، مسلسل ایک ہی جگہ پر مار رہا ہوتا ہے، اتنی مار مارتا ہے گوشت کا جو ہے، جسم کا جو ہڈیاں نظر آنے لگتی ہیں، جسم کا گوشت اڑنے لگتا ہے، ملزم جو ہے وہ ابھی اس کو تھوڑے سے پڑتے ہیں تو ساتھ میں بے ہوش ہو جاتا ہے، بعض تو موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، تو کتنا کس قدر وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ان پر ہو رہا ہوتا ہے جن کی یعنی کہ نہ تو گواہ پیش ہوئے ہیں اور نہ کسی نے دیکھا ہے، شک کی بنا پر کسی نے کہہ دیا ہے، شک کی بنا پر جو ہے نا اس کو پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے کہ جب رجم، کسی کو شادی شدہ کو رجم کر دیا گیا تو رجم کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے گا، مسلمانوں والا کیا جائے گا، اس کو نہلایا جائے گا، غسل دیا جائے گا، اس کی تکفین کی جائے گی، اس کی تدفین کی جائے گی، اس کے نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کو عزت کے ساتھ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اس کے حق میں دعائے مغفرت کی جائے گی، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کا ذکر برائی سے کیا جائے، بالکل بھی اسلام پسند نہیں کرتا۔ بخاری میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رجم سے معاذ بن مالک کی موت واقع ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خیر سے یاد فرمایا اور اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی،
मुस्लिम में हजरत बुरैदा की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माइज बिन मालिक के हक में दुआए मगफरत करो, इसने तो ऐसी तौबा की है कि अगर एक पूरी उम्मत पर तकसीम कर दी जाए तो सब के लिए काफी होगी। इसी रिवायत में यह भी फरमाया कि गामदिया जब रजम से मर गई, ये एक औरत थी गामदिया, उसने भी जिना सजद हुआ था, जब वो मरी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। और जब हजरत खालिद बिन वलीद ने इसका जिक्र बुराई से किया तो आपने फरमाया, खालिद अपनी जुबान रोको, इस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, इसने ऐसी तौबा की है कि अगर जालिमाना महसूल वसूल करने वाला भी वो तौबा करता तो बख्श दिया जाता। आपने दो शख्सों को माइस का जिक्र बुराई से करते सुना। चंद कदम आगे जाकर एक गधे की लाश पड़ी थी। हजूर ठहर गए और इन दोनों आदमियों से कहा कि आप हजरात इसमें से कुछ नोश फरमाएं। उन्होंने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, इसे कौन खा सकता है, मर्दार को, गधे की लाश को। आपने फरमाया, अपने भाई की आबरू से जो कुछ आप अभी तनावल फरमा रहे थे इस खाने की बनिस्बत बदतर चीज थी। तो अब यहाँ हमारे मुआशरे में क्या होता है कि अगर हाकिम वक्त सजा दे दे, फर्ज करो फांसी दे देता है, वो जो सजा शरीयत ने मुकर्रर की है वो तो दी नहीं जाती, वो तो बिल्कुल नहीं दी जाती। तो अगर ऐसा करता है तो फिर क्या होता है, लोग कहते हैं जनाजा पढ़ने नहीं जाते, लोग उसको उसके लिए दुआएं मुफ्त नहीं करते, उसका जिक्र मरने के बाद भी बुराई, हालांकि वो शहीद मरता है। आप फरमाते हैं कि इनके लिए दुआ करो कि खुदाया इसे मुआफ कर दे, खुदाया इस पर रहम फरमा, अल्लाहुम्मा मगफिर लहू, अल्लाहुम्मा अरहमहू। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब सजा दे चुकता है तो फिर इसे रहमत और शफकत की निगाह से देखना चाहिए। ये कम ज़रफ़ी सिर्फ क्या है कि मौजूदा तहजीब में पैदा की गई है कि हुकूमत की फ़ौज या पुलिस जिसे मार दे, पुलिस मार दे या फ़ौज मार दे, और कोई अदालती तहकीकात जिसके मारने को जायज़ ठहरा दे, इसके मतलब ये गवारा नहीं किया जाता कि कोई इसका जनाजा उठाए या किसी की ज़बान से इसका जिक्र खैर निकले। इसी तरीके से जो अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन व ज़ानियतु ला यनकिहुहा। फरमाया, जानी निकाह ना करे मगर जानिया के साथ या मुशरिका के साथ, और जानिया के साथ निकाह ना करे मगर जानी या मुशरिक, इल्ला जानिन औ मुशरिकुन व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनून, मगर जानी या मुशरिक, और ये हराम कर दिया गया है अहले ईमान वालों पर। तो ये इसकी जो ये आयत तर्जुमा मैंने पेश किया है, टाइम का को मलहूज रखते हुए इसका मैं नेक्स्ट बयान करूंगी। लेकिन जो मैंने अभी बयान किया है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम अगर यौम आखिरत पर ईमान रखते हो तो फिर ज़रा भी तखफीफ ना करो, जो मैंने सज़ा मुकर्रर कर दी है, सज़ा देते वक्त तुम्हारे यानी करीब एक ग्रोह मुकर्रर होना चाहिए, एक ग्रोह मौजूद होना चाहिए। तो इसके लिए जो अल्लाह ताला की ज़ात ने जो निज़ाम दिया है वो क्यों दिया है कि जब एक की सज़ा सबके सामने मिलेगी, सब लोगों का ग्रोह मौजूद होगा और सज़ा सबके सामने दी जाएगी, तो क्या होगा कि दूसरे लोग डर जाएंगे, तो मुआशरा जो है वो सही तरीके से परवान चढ़ेगा, और सही जो इस्लाम एक ख़ानदानी निज़ाम बनाना चाहता है, देना चाहता है, एक मजबूत निज़ाम, वो कायम होगा और शरई हदूद कायम होंगी। इसलिए इस्लाम कहता है, तो इस वाक़े में हमें एक बात मिलती है कि क़यामत के रोज़ एक हाकिम लाया जाएगा जिसने हद में से एक कोड़ा कम कर दिया था। पूछा जाएगा, ये हरकत तूने क्यों की? वो अर्ज करेगा, आपके बंदों पर रहम खाकर। इरशाद होगा, अच्छा तू उनके हक में मुझसे ज्यादा रहीम था? और फिर हुक्म होगा, ले जाओ इसे दोजख में डालो। और एक और हाकिम लाया जाएगा जिसने हद पर अपने एक कोड़े के इजाफा किया था। पूछा जाएगा, तूने किस लिए किया था? वो अर्ज करेगा, ताकि लोग आपकी नाफरमानियों से बाज रहें। इरशाद होगा, तू उनके मुआमले में मुझसे ज्यादा हकीम था? फिर हुक्म होगा, ले जाओ इसे दोजख में डाल दिया जाए। तो देख रहे हैं आप कि ना तो एक कोड़ा ज्यादा लगाया जा सकता है, जितनी सजा शरीयत ने मुकर्रर की है, जिस तरीके से मुकर्रर की है, जिस तरीके से मैंने बताया कि अपनी बगलों को, अपने बाजुओं को ना खोला जाए, और किस तरीके का कोड़ा जो है मारने के लिए इस्तेमाल किया जाए, कैसा पीछे जो पढ़ के आ चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सारा मामला है। तो अगर एक कोड़ा ज्यादा लगाया तो अल्लाह कहेगा, तूने क्यों लगाया? तू मुझसे ज्यादा हकीम था, तू मुझसे ज्यादा समझ बूझ वाला था, और तूने कम क्यों लगाया? तू ज्यादा रहीम था, मुझसे ज्यादा रहीम था, तूने कम लगाया। दोनों को ही जहन्नुम में रसीद कर दिया जाएगा। आप ये देख लें कि इस सूरत में जब भी कमी बेशी का अमल रहम या मसलहत की बिना पर हो, लेकिन अगर कहीं अहकाम में रद्दोबदल मुजरमों के मर्तबे की बिना पर होने लगे, तो फिर एक बदतरीन जुर्म
यानी कि जुर्म साबित होता है। मर्तबा देखा जाए, स्टेटस देखा जाए, फिर सजा दी जाए, कहीं ज्यादा कर दी जाए, कहीं बहुत कम कर दी जाए, कहीं दी ही ना जाए। तो ऐसे मामले में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा फरमाया कि लोगों, तुमसे जो पहले उम्मतें गुजरी हैं वो हलाक हो गई, इसलिए कि जब उनमें कोई इज्जत वाला चोरी करता था तो उसे छोड़ देते थे, और जब कोई कमजोर आदमी चोरी करता था तो उस पर हद जारी करते थे। इस तरह से एक रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हद जारी करना अहले जमीन के लिए 40 दिन की बारिश से ज्यादा मुफीद है। तो अल्लाह ताला ने जो जानी को सजा दी है, जो अल्लाह ने तजवीज़ फरमाई है, उसे उस सजा को भी ना बदला जाए, और जो सजा किसी शफकत की बिना पर, किसी मासियत की बिना पर हो, उसे भी ना बदला जाए। जो अल्लाह ताला ने जहाँ पे फरमाया कोड़े मारे जाएं, जो हदूद, जो कयूद जो बयान कर दी गई हैं, उनको अच्छे तरीके से जहन में रखा जाए कि इस तरीके से किसी का चर्चा करना, किसी को गलत देख लेना, किसी की भी तरीके से, चार गवाहान मौजूद हों वो इर्तिकाब करें, या जानी और जानिया खुद इर्तिकाब करें, तब ये हदूद नाफिज होंगी। अगर कवारा लड़की लड़के से ये गुनाह साज़िद होगा तो उनको कोड़े लगाए जाएंगे। कोड़े लगाने का तरीका भी बता दिया गया। और अगर शादीशुदा औरत और मर्द जिन्होंने खलवत सहिया इख्तियार की हो, आकिल हों, बालिग हों, मुसलमान हों और आज़ाद हों, ये तमाम शराइत पाई जाएंगी, तो फिर उनको संसार किया जाएगा। संसार करने का भी बता दिया गया। हत्तिल इम्कान कोशिश ये की जाए कि अगर किसी से गुनाह साज़िद हो गया है तो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करे, इकरार ना करे। और अगर वो इकरार करेगा तो इकरार आकर हाकिम के पास या वक़्त के जो काजी या जज है उसके सामने करेगा। अगर उसके पास किसी को कोई शिकायत पहुंचेगी तो फिर वो लोग जाकर यानी कि जज या काजी चार गवाहान तलब करेंगे, चारों के बयानात मिलते होंगे, और हर सवाल खुलकर पूछेगा, किस हालत में देखा, कैसे देखा, किस टाइम देखा, किस जगह पर देखा, किस तरह से देखा। ये तमाम सवाल जब जज कर चुकेगा, जिरा मुकम्मल हो जाएगी, तो अब सजा नाफिज की जाएगी। और सजा जब नाफिज की जाएगी तो सजा वही देगा जो अहकाम शरिया को समझता होगा, समझ बूझ रखने वाला होगा। ना सजा देने में कमी करेगा और ना सजा देने में ज्यादती करेगा। ये था आज का लेसन, जिसमें हमने समझा कि जिना की सजा क्या है, रजम किसे कहते हैं, और जो 100 कोड़े मारने का हुक्म दिया गया है, 100 कोड़े मारने का हुक्म कुरान पाक में दिया गया है। रजम की सजा अहादीस से हमें मिलती है, और तवातर के साथ तमाम सहाबा कराम, ताबईन, तमाम फुकहाए दीन इस पर अमल करते रहे हैं और इस पर अमल का हुक्म देते हैं। वा खुदावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।